Maharashtra politics is full of twists and turns. Now, a new twist is going on in Maharashtra. A new political twist is being visible in Maharashtra. Whether MNS chief Raj Thackeray and Shiv Sena UBT chief Uddhav Thackeray will come together. That is a question being asked in Maharashtra. Will these two brothers join hands by setting their political differences aside? Now, in a recently given interview to filmmaker Mahesh Manjrekar, Raj Thackeray expressed his willingness to join hands with Uddhav Thackeray. Uddhav Thackeray also echoed the same sentiments. There is an issue of Marathi language, the state government imposing Hindi as the third compulsory language, or whether it is an issue of Hindutva. It is a question being asked that whether these brothers who got separated will join hands once again. Today we are here in Thane. Thane is the bastion of Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde. So how the political dynamics will change if these two brothers join hands? Or is it just a headline, or is it a political masterstroke? Let's find out. Let's find out what do Thanekars think about this new development. Yes, as a family, this is welcome. First, as a family member, both are come together. That is good for their family and then for Maharashtra. So on what issues they might come together, because there is the issue of Marathi language, then state government is making Hindi compulsory as a third language. So very important thing is Hindutva. Okay. Yes, on the basis of Hindutva, need to be come together from both sides, Uddhav Thackeray and Raj Thackeray, because Balasaheb Thackeray known for Hindutva. So this is the common issue for all Indians, not for Maharashtra. So for Hindutva, this is very important thing to come together. Do you think Raj Thackeray and Uddhav Thackeray will come together, setting aside their differences? I don't think they will come together so easily because both of them has formed a different opinion of their own parties. Then I think there will be an issue of their egos, who will lead the parties and all. So I don't think it will be easy. Obviously, there is a possibility, but I don't think it's easy. So is it just a discussion going on in media, or in reality they will? I think it's a political show-off which is going on just to scare the BJP and Rashtrapati. Okay. This basically it's politics. So I think that's what they are doing. बहुत अच्छा रहेगा, दोनों अगर मिल के आएंगे तो महाराष्ट्र के लिए बहुत अच्छा है। कौन से मुद्दे पे एक साथ आ सकते हैं? हिंदू लोगों के और कौन सा मुद्दा, उनका तो वही है ना, हिंदुत्ववादी, बस बाकी कुछ है मराठी लोगों के लिए। मराठी लोगों के लिए जो अच्छा हो रहा है इसके लिए संजय राउत कुछ करता नहीं है। ये सब अभी तक जो बिगड़ा है वो संजय राउत की वजह से बिगड़ा है सर। अगर दोनों भाई साथ में आएंगे ना तो हिंदू के लिए अच्छा ही ना, मराठा के लिए अच्छा ही होगा। अच्छा, तो पहले एक साथ आने चाहिए थी, अभी लेट हुआ है कि क्या है? नहीं ठीक है, लेट हुआ तो कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी एक साथ में आएंगे ना तो भी बहुत काम हो सकता है ना। नहीं है, राज ठाकरे सबसे अच्छा आदमी है, एक्टिव है, और वो बाला साहब के साथ पीछे वही काम करने वाला आदमी है। अच्छा, बाला साहब की लीगेसी कौन फॉरवर्ड करेगा? राज ठाकरे। नहीं वो कैसा है, पहला तो उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ ही थे ना, कुछ गलती की वजह से वो बाजू हो गए। अगर वो साथ में आएंगे तो काम अच्छा रहेगा, जो बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। तो महाराष्ट्र के राजकारण में कुछ भी हो सकता है? हो सकता है, राजकारण ही, उसका नाम ही राजकारण है। हो सकता है, चेंजिंग तो हो सकता है, जिसका चल रहेगा उधर लोग जाने वाला। क्या लगता है सच्ची में दोनों भाई एक साथ आएंगे? देखिए, दोनों आगे साथ में रहे कोई बात नहीं। बॉम्बे में विकास होना चाहिए, उद्योग बढ़ने चाहिए और पब्लिक के मुद्दे क्लियर होने चाहिए, ये मेरी शुभकामना है। हम सब एक है, महाराष्ट्र अपना एक है, पूरे वर्ल्ड में इसका महाराष्ट्र का पहला नंबर लगता है। अपने अच्छा लगता है, दोनों भाई एक साथ आ रहे तो अच्छा है, महाराष्ट्र के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी तक इन लोगों ने महाराष्ट्र के लिए बहुत अच्छा काम किया है और उनका मुद्दा ही वही है ना, मराठी का, वो अच्छा है। अब तो सब ये लोग बोल रहे हैं
हिंदी हिंदी। तो अब सबसे ज्यादा लोग इधर महाराष्ट्र में तो बाहर के लोग ही खाना इधर पेट भरने के लिए आए हैं। तो उन लोगों ने ऐसे सोचना मांगता ना कि पूरा इंडिया में मराठी क्यों नहीं हो सकता है, हाँ पूरा इंडिया में मराठी। अपन ये नहीं बोल रहा है कि वो लोग पेट भर रहे थे, अपन इधर जो भी महाराष्ट्र के लोग बाहर लोग गए हैं बाहर स्टेट में, वो लोग उधर मैनेज करे ना। जैसे गुजरात में जाता है तो गुजराती बोलता है, इधर कन्नड़ में जाता है कन्नड़ बोलता है, इधर दिल्ली में जाएगा तो दिल्ली का बोलता है, हरियाणा में जाएगा तो वही कर। अगर ये लोग एक साथ आए तो कौन से मुद्दे पे ये लोग एक साथ आ सकते हैं? विकास, विकास उद्धव ठाकरे का वही है ना, उनका वही विकास, विकास ही मुद्दा है उनका मेन। अच्छा, तो पहले भी उन्होंने एक दूसरों के ऊपर आरोप किया है, बहुत गंभीर आरोप किया है। मैडम ये पॉलिटिकल इशू अलग है, तो पॉलिटिकल इशू अलग है, तो पॉलिटिकल में वो चलते ही रहेगा, वो चलता ही रहेगा पॉलिटिकल में, ऐसा बहुत रहेगा पॉलिटिकल में कि किनका भी रहेगा। अभी 2 का 4 पार्टी हो गया तो पार्टी एक साथ आए भी, वो जो ऐसा है वो लोग ने पार्टी अलग किया, वो पार्टी एक साथ आ भी गए वो लोग, हाँ जो लोग जिनके साथ नहीं रहने मांगता था वो लोग उनके साथ नहीं रह गए, ऐसा कुछ नहीं है।